welcome our next speaker, Pushpendra Rajpurohit. I think he is connected with us. Pushpendra, can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, very good evening. Pushpendra, Harjeet ji is also there. Harjeet Singh sir. Good evening, Harjeet respected sir. sir. So, Pushpendra is our alumni, 2015 batch pass out student, and he has developed himself. He is a good example of how the students can develop themselves in this institution through hard work, through their working with different kind of technology. So right now I would like to invite Harjeet sir to have a few words about Pushpendra, some introductory words about Pushpendra. And there is some problem, net problem is there in our institution. So I have called up Harjeet sir on this my PC itself. So I'll hand over to Harjeet sir, please. Very good evening, respected sir. Good evening, Pushpendra. Hope you are fine. Yes, sir. I am fine. As for Pushpendra, I would like to say that he is the best example of slow and steady wins the race. So he has been slow, but he has been very steady, very consistent, working consistently. As is often said, the way to success is only three words: hard work, and hard work. There is no shortcut to that. So he has proven that. So he started little late in this product development and doing projects or doing practicals in the lab. But he has been very consistent and steady uh, despite all odds, situations, challenges, uh, hard times, low times. But that is what makes you strong, and your determination is required that time. And if everything is easy going and you get all the facilities and all the opportunities and things are easy for you, so that in that situation everybody can do that. But the one who faces challenges and then overcomes those challenges and continuously moves on his path, so that is the real test of a man or a real test of a research engineer, product development engineer. Research takes patience, research takes time, and especially I tell my students that there are some misconceptions which already psychologists have removed, but we have little not aware of that. So earlier the use definition used to be there are some intelligent people or there's some not so intelligent or average people or poor people. So it has been rather obsolete. Now it is said that the slow learners whom we call slow learners, they are called late bloomers. They are late bloomers. So they will bloom high. Even in research area, such people whom we call average or not so intelligent are sought after. They learn slow, but they learn it thoroughly. Some people are slow just because they are thorough. And research and product development or such things needs thorough study and thorough understanding of things. Not just mugging up or not just picking up it fast and reproducing it, uh, which is the culture of our examination system. It's the sad part. But anyway, things are getting improved now in the new education system. All such things will be taken care. That rote learning is not given the only credit. The product development, doing something practical, or and learning the real things, putting it into the society for use. All such things will be taken care of and appreciated and duly given credit and regarded. So I'm happy that Pushpender is joining us again for the benefit of students and their juniors and subordinates. We hope that you will continue giving your associations with us, and we assure you that we will always there with you if we are of any support or use for you. Thank you once again. Thank you all the participants.
and all the speakers for making this program a success. Thank you. Over to you also. Yeah, thank you, sir. So I hand over this responsibility to Praveen Purohit, sir, to make an introduction. Okay, okay, fine. So, what is the design thinking? See, everybody is talking about that developing of the products, different type of products, and yes, it needs to be useful. Product has an inbuilt definition of being usability. So, for whom it is going to be used, whether it will be fulfilling all the expectations of the customer, whether the different type of requirements would be fulfilled or not. So everything needs to be as per the demand of the customers. So Pushpendra with us, he is having a very good experience in this product development, and we called up Pushpendra for giving his view on this particular issue, and he will be covering what is the design thinking. See, nowadays, since last few years, that design thinking has taken a great role in product development. So, welcome Pushpendra, and you can start your presentation now. Pushpendra. Thank you, respected sir. Very good evening to Praveen Purohit sir, respected Rahul Raj Chaudhary sir, respected Harjit sir, and all the faculty members and participants. So now I will start our today's topic, that is design thinking in a startup context. सिर्फ 1 minute टीम डाउनलोड नहीं हो रहा. Yes, please. Yes, sir. Is my screen visible? Yes, it is visible. Okay, thank you, sir. So our today's topic is design thinking, and this process is very useful to develop the products which are usable and which are developed by user's point of view, and that is the key to successful startup. So this is the outline of our today's presentation. Now, first we will discuss what is design, and we will see the aspects of design. We'll see the design proposal, the feasibility analysis. Then after we will come to design thinking process. So we always don't need to use the design thinking process, but in certain situations when the problem is wicked, where we need to use the design thinking process. What is wicked problem? We will see in the subsequent slides. Then we will see the empathy and especially difference between the empathy and sympathy. Then we will go through the design thinking process steps. These are empathize, define, ideate, prototype, and test. Then we will see the minimum viable product, because the output of the design thinking process is a product itself. So we need to ensure that the product is viable, and it should be a successful product. For that, the minimum viable product is very good concept. We will see that, and in that we will see the product management and product management function and how that function works. Then we will see the rapid prototyping, and we will see the difference between the prototype and minimum viable product. Then we will see two case studies. One is water level controller and another one is remotely operated devices. Okay, so these case studies will help us to think out of the box. Next slide. Next slide not coming. Yeah. So what is design? Actually, I was not able to move to the next slide. So that's why, sorry for the interruption. So what is the design? In the design process, we decide upon the looks and functioning of a building, garments, or any other object which we want to design by making a detailed drawing of it
just like sketches and designs using CAD tools, etc. And it is a plan or drawing produced to show the look and function of working of a building, garments, or other objects before it is made. So this is our design. What are the aspects of design? These three main aspects cover the design, that is human aspects, form aspect, and function aspect. When we combine two aspects like form and function, it becomes an industrial design. Then when we combine form and human, this is communication design. And when we combine two aspects of design, which are human and function, where we need to think from the user's point of view and where the design thinking takes place. So this is the designer's domain. So in the design proposal, we see whether our design meets the requirement, whether our design is appealing, whether our design is practical, and if it is feasible, and what is the approximate budget. We need to consider all these things, because when we think of making a product, then we have lots of desires, but we need to think what is feasible and what we actually deliver. Okay, so to summarize all the things, we generate the design proposal. Then we do the feasibility analysis. After the design has been completed, or during the design process itself, we need to do the feasibility analysis, because that is very important part of making a product successful or a startup successful. In the feasibility analysis, we do the market feasibility, what market trends are currently going on, are the people ready to accept your product or not. So we need to that market feasibility study, as well as we need to see the competition. If we want to develop some home automation products, then we need to think that who are our competitors. Like if Samsung is making good home automation products, then I think it will be hard for us to compete with him, but we can come up with our unique selling point and all these things. So with our design, we need to think what our competitors are providing and how we can differentiate ourselves from the competitors, how we can give better services in comparison to the services given by the competitor. Then we need to do the financial analysis also. We need to think about the funding options. We need to think about the cost of the product, all these things. So financial analysis is very important while designing a product itself. Then we need to study the capacity utilization, as well as supply and demand and site analysis. So all these things we need to cover in the feasibility analysis part of the design. Now, what is design thinking? We have discussed what design is actually. Now we will discuss what is design thinking. Design thinking is both an ideology and a process. It's all about solving complex problems in a user-centric way. This is very important term, the user-centric way. Okay. Design thinking was created as a way of taking the processes and approaches that designers use and applying them to problems that designers don't typically encounter. That means if we are developing, let's say, some equipment for labor, okay, so we don't have the experience which labor has, so we need to think from their perspective. Okay, we need to empathize. So the design thinking process makes us unable to develop the products which are usable by the laborers. Okay, so there are mainly 5 steps. These are empathize, define, ideate, prototype, and test. We will go in detail in the subsequent slides. And design thinking also draws on logic, imagination, intuition, and systematic reasoning to explore the possibilities of what could be and to create desired outcomes that benefit the end user. End user is what? End user is the customer. A design mindset is not problem focused, it's solution focused and action oriented. It involves both analysis and imagination. Suppose if we are given some task, so we can point many problems, but at the same time we can point the solutions of these problems too. So design mindset is the solution focused mindset. So in the design thinking process, immersion is there, getting into the problem, understanding the problem, understanding it from the user's point of view. Okay, that's the immersion. Then the ideation. 3 very important things are coming into the picture in the ideation stage.
These are creativity. Creativity is a very good ability. Human can get creative with lots of things, like if we see eye, then we created camera, okay, and touch sensors, and all these things are the results of the creativity, human creativity. Then the third stage is implementation. In the implementation, we actually develop some prototypes. Prototype is the representation of our idea and the minimum viable product or the product itself. So these are the important stages of design thinking. So design thinking integrates three things: desirability, feasibility, and viability. So from the persons we get the feedback or we get the input. So actually we are getting the desired, what are the desirable things from the people. Then what are the feasible or practical things? These will be decided by the technology, what technologies are available, what technology we have access to, and what technologies are out of our reach, like these things we need to consider. So feasibility is there. Then third thing is viability, and that is business. So we do cost estimation, quantity, and supply and demand, all these things. Accordingly we develop our product. Okay, let's say if we want to develop some automatic cooling system for a cooler, which starts the water supply when the water in the cooler is finished. Pushpendra, Yes, sir. should I interrupt? Yes, sir. I would request you to just make it with Hindi. Hindi. Can you use some Hindi language? Yeah, sure, sir. I'm comfortable in Yes. Hindi language, sir. सो मैं यहाँ से अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँगा. तो हमें तीन चीज़ें डिज़ाइन थिंकिंग में जो इंटीग्रेट करनी होती है वो है डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी. सो जब हम इंटरेक्ट करते हैं हमारे यूजर्स के साथ में, तब हमें पता चलता है कि उनकी क्या डिजायर्स है, उनको क्या चाहिए. देन जो उनको चाहिए हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट वी सी इन द टेक्नोलॉजी सेक्शन. हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिससे कि हम वो चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यूजर के पास जाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको मतलब किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए. देन वो यूजर जो है वो कहता है कि भाई मेरे को तो एक ऐसा छोटा सा हेलीकॉप्टर दे दो जिसमें मैं बैठ के और कहीं पे भी जा सकूं और उसमें फ्यूल भी बहुत कम लगना चाहिए. सो तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास में उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, वो चीज प्रैक्टिकल है कि नहीं. सो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें उसकी प्रैक्टिकलिटी या फिजिबिलिटी बताती है. उसके बाद आता है बिजनेस. तो वो बताता है कि वायबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की. तो ये तीनों चीजें जब हम कंबाइन करते हैं तो वो हम डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को यूज लेते हुए कंबाइन करते हैं. और इन तीनों का एक बहुत ही अच्छा जो कॉम्बिनेशन है, जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो हम ले पाते हैं डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस यूज करके. तो हमें हमेशा डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम ऐसी होती है जो इल डिफाइंड होती है, जो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती है. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड विकेड प्रॉब्लम. Wicked problem is a problem that is difficult or impossible to solve because of the incomplete, contradictory, and changing requirements that are often difficult to recognize. Okay, so अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द एम्पैथी. एम्पैथी एक यूजर के नजरिए से किसी भी प्रॉब्लम को देखने का एक तरीका है. सो वी सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, वी अप्रिशिएट देम एज ह्यूमन बीइंग्स, और हम उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, हम खुद फील नहीं करते हैं बल्कि हम अंडरस्टैंड करते हैं उनकी फीलिंग्स को. एंड हम जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कम्युनिकेट करते हैं यूजर को टू चेक वेदर वी आर राइट और रॉन्ग. सो डिफरेंस क्या है एम्पैथी और सिंपैथी में? सिंपैथी जो है वो मोस्टली सॉरोफुल फीलिंग्स होती है, बट एम्पैथी इसमें मतलब दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकता है, एंड एनीथिंग द यूजर फील्स. ओके, एंड एम्पैथी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यूजर इज फीलिंग, while the sympathy is the feel itself. So
ये एक बेसिक डिफरेंस है एम्पैथी और सिंपैथी में। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। इसमें मेनली 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज एम्पैथाइज, देन सेकंड इज डिफाइन, देन थर्ड वन इज आइडिएट, फोर्थ वन इज प्रोटोटाइप एंड फिफ्थ वन इज टेस्ट। ऑलमोस्ट जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो अच्छे लेवल के हैं वो इस मॉडल को यूज करते हैं, और IBM भी मतलब इसी मॉडल को यूज करता है। एंड हम अब जो हमारा पहला जो इसमें स्टेप है एम्पैथाइज, वो है कि किसी भी प्रॉब्लम को यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना, उसका जो पेन पॉइंट है उसको पकड़ना। तो जैसे कोई यूजर हमारे पास में आता है और वो बोलता है कि हमें एक डिवाइस चाहिए जो कि हमारे सर्टेन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा दे। फॉर एग्जांपल कोई जैसे माइनिंग का एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कि हमें डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है और उसमें अलार्म आनी चाहिए, उसमें हमारा जो वर्कर है वो नीचे खड़ा है और उसमें उस वर्कर के पास भी अलार्म जानी चाहिए वायरलेसली। केबल हम यूज ले नहीं सकते बिकॉज जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। या फिर जो माइनिंग एक्टिविटीज में जो स्लाइड्स वगैरह होते हैं, लैंड स्लाइड्स या फिर किसी भी तरह का मैकेनिकल फेलियर, तो उसमें केबल्स प्रैक्टिकल नहीं है। सो हमें यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। सो जो हमारा पहला फेज है डिजाइन थिंकिंग का वो है एम्पैथाइज। इस फेज के अंदर हम प्रॉब्लम को यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। क्योंकि जैसे एक गोलगप्पे वाला है, उसको मान लो कोई मतलब इस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जो उसका टाइम बचाए, कि वो अपने घर से मार्केट आता है और वापस जाता है, तो आने जाने में उसका काफी सारा टाइम और एनर्जी चला जाता है। अगर हम उसके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है कि भाई इस तरह के आप 10 व्हीकल बना के उन लोगों को दो, सो दैट जो स्वरोजगार है उसको बढ़ावा मिले या फिर उनकी जिंदगी आसान हो आम आदमी की। तो हमें क्या करना होगा, हमें इंटरव्यू करना होगा उनके साथ में, और हमें जानना होगा कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एज वेल एज वो कितना अफोर्ड कर पाएंगे। अब हम उनको गाड़ी बना के तो दे देंगे, लेकिन हम कहेंगे कि आपको इसकी चार्जिंग के लिए चार्जर लेना पड़ेगा, या इतनी बिजली खर्च करेगा, या फिर अगर पेट्रोल बेच दे तो इसका इतना एवरेज आएगा। तो हो सकता है कि वो यूजर बोल दे कि नहीं, वो ये चीज मेरे लिए प्रैक्टिकल ही नहीं है, मैं अपना उसी तरीके से खुश हूँ जैसे मैं पहले आ रहा था। सो आपको समझना पड़ेगा कि यूजर का पेन पॉइंट क्या है। सिर्फ तभी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट टेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है, वो यूजेबल तभी होगा जब आप अच्छे से एम्पैथाइज करेंगे। और टूल कौन कौन से हमारे पास एम्पैथाइज के लिए? ये हैं ग्रुप इंटरव्यूज, एज इन सिनेरियो मैप, माइंड मैपिंग एंड एम्पैथी मैप। तो इस तरह के टूल्स हम यूज लेके और जो एम्पैथाइज फेस है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम उन यूजर्स को कॉल कर सकते हैं और साथ के साथ हमारे जो डेवलपर्स हैं उनकी टीम को भी बिठा सकते हैं और उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो डेवलपर है वो समझ पाएगा कि यूजर को एग्जैक्टली क्या चाहिए। ओके, और जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही मीटिंग में सारा कुछ हो गया। हो सकता है कि यूजर आके बताए कि नहीं, ये चीज आपने बना दी लेकिन इसमें ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि डेवलपर उस तरह की सिचुएशंस को फेस नहीं करता है, एनकाउंटर नहीं करता है, इसलिए उसको यूजर ही बता पाएगा कि आपको किस तरह से काम करना है, तभी वो चीज यूजेबल है। अगर हम ये फीडबैक लूप नहीं रखेंगे तो थोड़े टाइम बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। और जो कंपटीशन के अंदर जो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहा है, वो हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएगा। सो एम्पैथाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यू कैन नॉट स्किप दिस स्टेप। वंस मतलब एक बार हम एम्पैथाइज स्टेप से गो थ्रू हो जाते हैं, तो अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को करेक्टली डिफाइन करते हैं। डिफाइन, तो इसके अंदर हम करेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। वी शुड नॉट सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम। ओके, यूजर की जो प्रॉब्लम है एक्चुअली हमें वही सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल एक ब्लूटूथ जो स्पीकर है वो मार्केट में आता है। अब कोई मैन्युफैक्चरर है, वो उसको जस्ट यूनिक दिखाने के लिए उसमें एक सॉल्ट डिस्पेंसर भी लगा देता है कि भाई आप जिस तरह से अलेक्सा को ऑर्डर देते हैं उसी तरह हमारे इस डिस्पेंसर को ऑर्डर देंगे, तो ये क्या है कि सॉल्ट आपके खाने में डिस्पेंस करेगा। बट ये उस जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसकी कॉस्ट को लेट से 1/3 बढ़ा देता है, तो यूजर उसको खरीदने नहीं जाएगा। ऐसा एक वाकई में प्रोडक्ट आया था और वो फेल हुआ था बिकॉज उन्होंने गलत प्रॉब्लम को सॉल्व किया। किसी को भी सॉल्ट डिस्पेंसर की जरूरत नहीं है जो वॉइस ड्रिवन हो, वॉइस इंस्ट्रक्शन ड्रिवन हो। सो हमें ये देखना पड़ता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी होती है। सो एम्पैथाइज स्टेज से जो भी हमारा डेटा है उसको एनालिसिस करने के बाद ही हम प्रॉपर्ली हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको डिफाइन कर पाते हैं। उसके टूल्स क्या है?
स्टोरी बोर्डिंग, पर्सोनास, प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स, बिग आइडिया विनेट्स। सो हम अच्छा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, हम डिफरेंट पैरामीटर्स को लिखते हैं, उनके कॉलम्स बनाते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो लोगों से इंटरव्यू लिए थे उसके हिसाब से मार्किंग करते जाते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटीज है, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हमें सॉल्व करना है। तो उनके फिर लास्ट में जो भी पॉइंट्स बढ़ेंगे, जो भी कंबाइंड पॉइंट जिसके सबसे ज्यादा होंगे, वो आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। सो इस तरह के टूल्स हम यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्यूरेट। सो आइडिएट स्टेज में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इम्पोर्टेंट तो मतलब जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो स्टेज है। तो क्रिएटिविटी एज वेल एज रिसर्च एज वेल एज इनोवेशन, इन सारी चीजों का इस थर्ड आइडिएट स्टेज में काफी यूज होता है। तो एक बार हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया कि यार दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज वी नीड टू सॉल्व, तब हमें क्या करना होगा, आइडियाज जनरेट करने होंगे, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे 5 जनों की टीम है तो हम 5 जनों को वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके और आइडिया जनरेट करने का काम दे देंगे। ओके, तो 500 जने अपने अपने आइडियाज के साथ में आएंगे, या फिर हो सकता है मेरे भी एक से ज्यादा आइडियाज हो, तो अब टोटल हमारे पास में 10 आइडियाज आ गए। तो इन आइडिएशन स्टेज वी में है वन और मोर आइडिया, कोई भी आइडिया अच्छा या बुरा नहीं होता है। ओके, तो हमें सारे सब तरह के आइडियाज कंसीडर करने चाहिए। उसके बाद में हम कुछ टूल्स है वो यूटिलाइज करेंगे बेस्ट सिलेक्शन के लिए, कौन सा आइडिया बेस्ट है उसके लिए। तो एक तो आइडिएट स्टेज में हमें जो ध्यान में रखने लायक चीजें हैं वो है टाइम बॉक्सिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्केचिंग एंड डॉट वोटिंग। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेम्स भी डिसाइड करने होते हैं, बिकॉज टाइम टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नोकिया है, उसने इनोवेट नहीं किया टाइम पे, या फिर मतलब बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास में कि जो थोड़ा सा टाइम डिले होने के कारण फेल हो गए, बिकॉज प्रोडक्ट एक मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है। उसके बाद में जो जिन्होंने बहुत स्टार्टिंग में प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया था और अर्ली अडेप्टर्स के थ्रू बहुत अच्छे फीडबैक्स लेके उन्होंने इटरेट करके और अपने एक बहुत फाइन प्रोडक्ट के फॉर्म में वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उससे हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं। एज वेल एज हमारी मार्केटिंग उस लेवल की नहीं होती क्योंकि हम जस्ट इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में। ओके, सो एक डाउट वाला क्वेश्चन मार्क रहता है। सो टाइम टू द मार्केट के लिए हमें आइडिएट स्टेज में ही टाइम बॉक्सिंग से स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमें डिफरेंट तरह के जैसे इंडस्ट्री में डेवलपर से ज्यादा जो जॉब्स हैं वो टेस्टिंग इंजीनियर्स की है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सिनारियोज वो डालते हैं और उस चीजों को चेक करते हैं। तो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है काफी सारे एंगल से कि हमारा जो आइडिया है वो सही है क्या, इसमें हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, और क्रिएटिविटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आइडिया का एक स्केच बनाएंगे, स्केच या माइंड मैप, ऐसा कुछ भी जिसको देख के जिसको हम दिखा के रिप्रेजेंट कर सके हमारा आइडिया। ओके, तो एक बार जैसे मतलब 10 जनों को आइडिया आया या फिर 5 जनों को आइडिया आया और 5 आइडिया मान लो एक अकेले इंसान को आ गए, तो वो 10 के 10 का स्केच अब रेडी है। तो उसकी क्या होगी, डॉट वोटिंग। डॉट वोटिंग मतलब कि आपको जो आइडिया अच्छा लगे उसके आगे एक डॉट लगा दो, दैट इज डॉट वोटिंग। तो जिसके आगे सबसे ज्यादा डॉट्स, इसका मतलब वो आइडिया है that is more likely to get succeeded. Okay, so the next stage is prototype. Prototype क्या होता है? Prototype is the representation of our idea. सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉनिक और एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर हूँ, मेरे पास कोई भी पर्सन आता है कि हमें इस तरह का डिवाइस चाहिए जिसके अंदर मेरा डाटा है वो टाइम के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए और मेरा सेंसर है वो ये पर्टिकुलर पैरामीटर मेजर करना चाहिए। ओके, तो मैं उससे सारे इनपुट लेके उसके बाद में प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करके उस पर काम करके एंड देन खूब सारे आइडिया जो जनरेट होते हैं उसमें से एक आइडिया के साथ आगे बढ़ के आता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसका एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करूंगा जो कि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं यूजर को कि देखो ये मैंने बनाया है और इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। सो नेक्स्ट स्लाइड, जो आपके टूल्स हैं प्रोटोटाइपिंग के, उसमें ऑफ कोर्स पेंसिल एंड पेपर चाहिए होता है एंड फिग्मा एंड गो, मॉकिंगबर्ड, इस तरह के कुछ ऑनलाइन जो टूल्स होते हैं हमारे वायर फ्रेमिंग के और के, वो हम यूज ले सकते हैं। उसके अलावा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हम प्रोटोटाइप में यूज ले सकते हैं क्योंकि काफी चीजों को हम खाली सिमुलेट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में कोई भी चीज जो हमारे सामने अवेलेबल है
हम मार्केट में जाके उन सारी चीज़ों को प्रोटोटाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे फिलहाल कंस्टेंट नहीं है हमारे लिए। भाई हम चाहते हैं भाई प्रोडक्ट है उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो कम आए, लेकिन जो प्रोटोटाइप बनाना है वो तो 1 या 2 यूनिट ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उसके जो भी पार्ट्स है वो मार्केट में जो भी अवेलेबल है उन चीज़ों को मॉडिफाई करके बना सकते हैं। सो हमें क्विक एक मार्केट स्कैन कर लेना चाहिए कि किस तरह से हम अपने प्रोटोटाइप को फास्ट बना सकते हैं, और प्रोटोटाइप की क्या क्या खासियतें हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत कम टाइम में बनना चाहिए, और क्योंकि टाइम टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज वेल एज प्रोटोटाइप स्टेज तक हमें पता नहीं होता है कि हमारा आइडिया यूजर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो दैट हमें प्रोटोटाइप बहुत फास्ट बनाना चाहिए, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कुछ भी चेंज करने की। जैसे कि यूजर कह देता है कि ये पर्टिकुलर फीचर है वो मैं परफेक्टली हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम उसी वक्त उसमें वो चेंज कर सकें, वो फ्लेक्सिबिलिटी हो। ओके, सो एक मतलब काफी अच्छा एग्जांपल है इस चीज का कि हम 2 तरह के वाटर लेवल कंट्रोलर बनाते हैं। एक बनाते हैं जो नॉन प्रोग्रामेबल है, ओके, उसमें जो फीचर्स है वो हमने पहले से ही डिसाइड कर दिए कि ये इतना लेवल होने पे पानी भरेगा, इतना लेवल होने पे पानी बंद कर देगा। और दूसरा हम बनाते हैं प्रोग्रामेबल। अब यूजर आके कहता है कि नहीं, मेरे को तो जब मेरी मर्जी हो तब बंद करना चाहिए और जब मेरी मर्जी हो तब चालू करना चाहिए, मतलब लेवल के अलावा साथ में ये फीचर भी देना है। तो जो नॉन प्रोग्रामेबल है वो आपको स्क्रैच से दोबारा बनाना पड़ेगा। इसी के साथ जो प्रोग्रामेबल है, और आजकल मोस्टली सारी चीजें प्रोग्रामेबल आ रही है, तो उसमें आप क्या करोगे, तुरंत कोडिंग के लाइंस में कुछ चेंज करोगे और आपका वो अकॉर्डिंगली फंक्शन करने लगेगा, या 1-2 एक्स्ट्रा सेंसर आपको मैक्सिमम जोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपका टाइम बचाती है। ओके, एंड द नेक्स्ट फेज इज टेस्टिंग। सो एक बार हम अपने प्रोटोटाइप को बना लेते हैं, तो उसके बाद में हमें उसका टेस्ट करना जरूरी है। टेस्ट करने के लिए मेनली जो इम्पोर्टेंट जो फेजेस है वो ये है कि सबसे पहले आप करते हैं अल्फा टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोगों में से आप पूछ लेंगे कि आप प्रोटोटाइप यूज करिए और बताइए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। या फिर आपने कुछ जो सर्टेन यूजर्स हैं जो आपके डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हिस्सा है, उनको आप इनवाइट करके बोलते हैं कि आप इस प्रोटोटाइप को यूज करके बताइए इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चेंजेस लाने हैं, और वो सारे फीडबैक का आप एक डेटाबेस बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। हमारे पास लिमिटेड यूजर्स होते हैं उसके लिए। देन एक बार अल्फा टेस्टिंग में मेजर जो 70-80% चेंजेस है वो हमारे पकड़ में आ जाते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसको जो वॉलंटियर्स होते हैं उनके लिए लॉन्च करते हैं मार्केट में। ओके, एंड दिस इज अवर बीटा वर्जन। तो कई सॉफ्टवेयर का भी आप देखते हैं कि बीटा वर्जन आता है, तो वो एकदम ऑफिशियल लॉन्च से पहले का होता है, जिसके अंदर एक क्राउड मिलता है हमें हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए। वो जो क्राउड है वो फीडबैक देता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द बीटा टेस्टिंग। और उसके बाद हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं मार्केट में, एंड उसके बाद में वहां पे टेस्टिंग हमारी खत्म नहीं होती है क्योंकि एक फीडबैक लूप है, तो नए नए वर्जन निकलते रहते हैं। जैसे कि विंडो 8 आया, पहले उसका बीटा वर्जन आया, कुछ लोगों ने, अर्ली अडेप्टर्स ने और टेक एंथुसियास्ट ने उसको इंस्टॉल किया। अब उसके बाद में उन्होंने जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी रिपोर्ट करी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को। तो कंपनी ने उसका क्या किया, जो भी बग्स थे उन सबको फिक्स करके और उसका जो ऑफिशियल वर्जन है वो मार्केट में लॉन्च किया। तो उसके बाद में जो अब यूजर्स का जो फीडबैक आने लगा वो कुछ ऐसा था कि वो विंडो 7 के साथ बहुत फैमिलियर थे और विंडो 8 थोड़ी अलग है, सो 7 पे ही टिके रह रहे थे लोग, 8 पे नहीं आ रहे थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसका फिर नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया, विंडो 10। ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्जन आते रहेंगे मार्केट में। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट के अंदर टेस्टिंग और फीडबैक मैकेनिज्म जरूर डालना चाहिए। ओके, सो ये स्टेजेस थी हमारी डिजाइन थिंकिंग की। और टेस्टिंग के क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, ऑनलाइन टेस्टिंग टूल्स हो सकते हैं, या फिर हमारा जो यूजर है हम उससे कंटिन्यूस फीडबैक ले सकते हैं। अब जो हमारा डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है, इट इज नॉट अ वन वे प्रोसेस। हमें कई बार एक नेक्स्ट स्टेट से प्रीवियस स्टेट पे आना पड़ता है। जैसे कि हमने एम्पैथाइज किया, देन हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पर्टिकुलर जो है उस पे पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने बनाया। देन आइडिएट स्टेज पर आए तब हमें पता चला कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही गलत है, तो हम जाके क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अगेन अगेन डिफाइन स्टेज पे जाएंगे, and then from define stage itself we will go to ideate, prototype and test।
और जरूरी नहीं है कि मतलब एक दो बार के इटरेशन में काम हो जाएगा, हमें ये चीज मल्टीपल टाइम करनी पड़ती है, और किसी भी प्रीवियस स्टेट किसी भी नेक्स्ट स्टेट से प्रीवियस स्टेट पर हमें आना पड़ता है। जैसे कि हमने प्रोटोटाइप बनाया और उसके बाद में हमने यूजर को वो प्रोटोटाइप टेस्ट करने के लिए बोला, तब यूजर ने कहा कि एग्जैक्टली ये चीज नहीं चाहिए थी और इसमें मुझे ये दिक्कतें आ रही है। तो हमें पता चलता है कि एम्पैथाइज स्टेज से हमें दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब वो मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम कंटिन्यूअस इटरेशन करते रहेंगे, ये रिफाइनमेंट करते रहेंगे, तभी हमें फाइनेस्ट और मोस्ट इनोवेटिव वर्जन ऑफ प्रोडक्ट का वो मिलेगा। सो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस एक क्लोज लूप प्रोसेस है जो थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ चलता रहता है। अब डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस जो है उसका जो आउटपुट है वो एक प्रोडक्ट है। ओके, सो इट शुड बी सक्सेसफुल इन द मार्केट एंड इट शुड बी यूजेबल एज वेल। सो उसके लिए हम आते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पे। अब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है ये हम देखते हैं। ये आपके प्रोडक्ट का फर्स्ट वर्जन आप कह सकते हैं, और ये आपका जो यूजर है उसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। भले ही वो थोड़ा सा हो सकता है कि उसको यूज करना तो उतना इजी ना हो या फिर उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ना हो, बट प्रोडक्ट मार्केट में तभी बिकेगा जब वो फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, ब्लूटूथ स्पीकर के साथ सॉल्ट डिस्पेंसर ऐड करना जरूरी नहीं है, ऑल्दो वो एक चलो ठीक है रॉन्ग प्रॉब्लम था। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में एक व्हील चेयर है, उसमें जो हमारे पास कुछ मूवमेंट के बटन है कि फॉरवर्ड वाला बटन दबाने पे फॉरवर्ड होना चाहिए, रिवर्स वाला बटन दबाने पे रिवर्स होना चाहिए, लाइक दैट, और उसकी हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। सो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से यूजर का फंडामेंटल प्रॉब्लम है और कौन से जो है वो एडिशनल फीचर्स हैं। तो एडिशनल फीचर्स को हम एक बार के लिए टाल सकते हैं। तो हमारा जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो फंडामेंटल प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना चाहिए, एज वेल एज हमें फीडबैक पाथ प्रोवाइड करवाना चाहिए कि जो यूजर है वो उसको यूज करने के बाद में अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर कर सके, या कुछ अपने मतलब सजेशन है वो हमें प्रोवाइड करवा सके, जिससे कि हम फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट को और रिफाइन करते जाएं। दैट इज द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो हमें उस व्हीलचेयर को बनाते वक्त उस वक्त ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमारा बटन टच स्क्रीन ऑपरेटेड है कि नहीं, वो सिंपल आपका पुश बटन भी हो सकता है। एक बार यूजर कंफर्टेबल है उन चीजों के साथ, देन हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं बाद में, और वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके नेक्स्ट वर्जन होते जाएंगे। ओके, सो ये हमारा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है। बेसिक डेफिनेशन इज कि यूजर उसको इंडिपेंडेंटली यूज कर सके, हमेशा आपका सुपरविजन नहीं चाहिए हो, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे डिफरेंस में प्रोटोटाइप में और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो यूजर उसको एक प्रोडक्ट की तरह ही यूज कर सके, इवन दैट इज अ प्रोडक्ट इटसेल्फ, एज वेल एज वो यूजर की फंडामेंटल प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करना चाहिए, भले ही उसमें एडिशनल फीचर्स ना हो। दैट इज द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब जो मिसकंसेप्शन है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के, वो कुछ ऐसे हैं कि कई बार लोग सोचते हैं प्रोटोटाइप ही मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटोटाइप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर आइडिया। अभी तक उसका हो सकता है सेफ्टी टेस्टिंग भी उस लेवल पे ना हुआ हो, या फिर हो सकता है कि मास मैन्युफैक्चरेबल ना हो, है ना, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो उसमें उतनी अच्छी ना हो, रोबस्ट ना हो। बहुत सारी चीजें हैं कि प्रोटोटाइप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं होता है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट। दूसरा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या है कि हाँ हम इस चीज को इंप्लीमेंट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। बट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। ओके, और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कुछ ऐसा नहीं है कि जस्ट इसके मतलब इसके साथ ही हमने कुछ स्टार्ट कर दिया, या फिर जैसे होम ऑटोमेशन मैंने जस्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ मार्केट में डाल दिया, वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एक कंप्लीट प्रोडक्ट है जो यूजर की फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करे और फुल्ली फंक्शनल हो। ओके, इट्स नॉट जस्ट समथिंग टू स्टार्ट विद। और ऐसा भी नहीं है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब उसकी पेंटिंग प्रॉपर नहीं होगी, उसकी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होगी, है ना। तो क्विक एंड डर्टी ये चीज डिफरेंट है। एंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जस्ट एक प्रोडक्ट है जिसको बहुत कम टाइम में आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, और उसके काफी फायदे होते हैं, जैसे कि टाइम टू मार्केट है, जैसे कि यूजर के थ्रू ह्यूज फीडबैक मिलना, जिसके साथ आप नेक्स्ट वर्जन आप प्रोडक्ट का मार्केट में लॉन्च कर सको। हमारा जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो सर्टेन चीजें हमें देने में एबल होना चाहिए।
जैसे कि वी कैन थिंक बिग, वी कैन स्टार्ट विद स्मॉल एंड वी कैन इटरेट फास्ट। ओके, शुरू में हम कुछ फंडामेंटल फीचर्स देके भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके साथ जो भी यूजर का फीडबैक है उसको कंटिन्यू वे में यूटिलाइज करके और हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लेस कॉस्ट में प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जब हमारा प्रोडक्ट पूरा परफेक्ट हो गया उसी में हम उसी तभी हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर हमारा बजट कम है और हम कम फीचर दे पा रहे हैं स्टार्टिंग में, ओके, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम कर पा रहे हैं, टेस्टिंग कम कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके लिए क्या मिनिमम जो फीचर्स है वो हमें देने चाहिए जो हमारे लिए फिजिबल है। तो हम कम बजट के साथ, कम टाइम के साथ हम जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। और जो हमारा प्रॉपर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है रियल यूजर्स के साथ में, कि भाई हम यूजर को हमने दे दिया वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, अब यूजर उसको यूज करके अपने जो फीडबैक है वो हमें प्रोवाइड करवाएगा। और इसी के साथ साथ मार्केट में हमारी एंट्री भी फास्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक प्रॉपर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हमें देता है। अच्छा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? जो यूजर फोकस्ड हो। ओके, यूजर क्या सोचता है और यूजर को किस तरह का सॉल्यूशन चाहिए, अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट वैसा है कि नहीं। अगर वो वैसा होगा तभी यूजर उसके साथ जुड़ पाएगा और उसको यूज कर पाएगा। एंड जो रिफ्लेक्ट्स टेस्टेड यूजर नीड्स, जो भी आपने टेस्टिंग फेज के दौरान या फिर प्रोटोटाइप स्टेज के दौरान, प्रोटोटाइप के बाद जो टेस्टिंग है उसके दौरान आपने यूजर्स की जो नीड है उनको पहचाना, उनको वो सॉल्व कर रहा है कि नहीं, वो आपका गुड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो उसको सॉल्व करना चाहिए। और इट सॉल्व्स द कोर प्रॉब्लम, दैट मीन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसके लिए वो प्रोडक्ट बना है उसको वो सॉल्व करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है उसमें एक्स्ट्रा फीचर तो हमने डाल दिया और उसकी वजह से हमारे जो कोर प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैकेनिज्म वही गड़बड़ा रहा है। मतलब हमने इतने एक्स्ट्रा फीचर डाल दिए कि यूजर उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। सो कोर प्रॉब्लम को वो जरूर सॉल्व करना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका ग्रेट फीडबैक लूप होना चाहिए। सपोज फीडबैक लूप नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे कि हमने एक माउस बना के मार्केट में दे दिया, तो क्या वो उस माउस को काफी सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत आ रही है और वो यूजर हमें बता नहीं पा रहे हैं कि उसमें पर्टिकुलर बटन क्लिक नहीं होता है, या फिर उसको बटन को क्लिक करने के लिए हमारी फिंगर को पूरा पीछे ले जाना पड़ता है। अगर हमें हमारे पास में ये फीडबैक नहीं है तो हम नेक्स्ट जो है अच्छा वर्जन उसका मार्केट में नहीं निकाल पाएंगे। और अगर हमारे पास में ये फीडबैक है तो हम अगले ही वर्जन में उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करके और एक अच्छा यूजेबल प्रोडक्ट मार्केट में उतार पाएंगे। तो एक जो अच्छा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो एक अच्छा फीडबैक लूप भी आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए। व्हाट इज अ बैड एमवीपी? इट इज जस्ट अपोजिट द गुड एमवीपी। ये आपका ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट भी हो सकता है या ओवर सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट भी हो सकता है। ओके, जैसे कि आपको वो चेयर यूज करनी है तो आपको लेट से 5 बटन दबाने पड़ेंगे या 2-3 लीवर आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, इसी तरह से ओवर सिंप्लीफाइड कि भाई अगर आपको हाइट बढ़ानी है चेयर की तो ठीक है, आप नीचे एक वो रख लो तो या पत्थर कुछ भी उसके ऊपर चेयर रख लो, दिस इज वेरी सिंपल, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द यूजर। और ओवर इंजीनियर्ड भी नहीं होना चाहिए और नॉट इंजीनियर्ड भी नहीं होना चाहिए। और यूजर की जो नीड्स है उसके साथ अगर अलाइन नहीं कर रहा है तो फिर वो हमारा जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है दैट इज यूजलेस फॉर द यूजर। ओके, तो यूजर उसको परचेज नहीं करेगा और उसको यूज नहीं करेगा। और अगर फीडबैक लूप नहीं है, किसी भी तरह से हमें यूजर का सजेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर हम आगे उसको फर्दर डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो एक बैड एमवीपी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम किस तरह से एक प्रॉब्लम से एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो वेरी मतलब बहुत अच्छे से रिटर्न होना चाहिए। उसमें हमें यूजर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है या फिर जो भी उससे प्रॉफिट गेन कर रहा है या फिर जो भी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, तो उन सबको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते वक्त हमें मार्केट स्कैन करना चाहिए और हमारे जो पॉसिबल कंपिटिटर्स हैं उनकी जो स्टडी है वो भी हमें करने के बाद ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्ट डिफाइन करना चाहिए। और जो फेल्ड अटेम्प्ट है उनकी स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है उसका अल्टीमेट जो गोल है वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है।
तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो पिछले फेल हुए वो क्यों फेल हुए। ओके, इसी के साथ साथ जब एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा पूरा अच्छे से डिफाइन हो जाता है, तो जो आइडियाज हैं वो जैसे कि प्रीवियसली हमने जो प्रोडक्ट डिजाइन थिंकिंग की स्टेजेस में देखा था, सिमिलर वे में एक पेज पर उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। साथ के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट कि प्रेजेंटली क्या क्या सॉल्यूशंस उसके अवेलेबल है उनकी स्टडी भी होनी चाहिए। अदरवाइज ऑलरेडी वो आइडियाज पहले को इम्प्लीमेंट कर चुका है तो हमारे इम्प्लीमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। थर्ड थिंग इज कंपटीशन, कि कंपटीशन क्या सॉल्यूशंस दे रहा है, हमारी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो क्या सॉल्यूशंस दे रही है। अगर वो हमसे बेटर सॉल्यूशन दे रही है तो हमें अपने आइडिया पे और काम करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ हमें फिर कुछ कंसेप्ट्स और वी कैन से सॉल्यूशंस की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाहिए, डिफरेंट पर्सोनास, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, फिजिबिलिटी एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए सो दैट हम एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ सकें। ओके, उसके बाद में हम उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ओके, हो सकता है कि जो हमारा डेटा हो या जो भी हमारा बैकएंड डेटा हो वो रियल ना हो, वो जस्ट डमी डेटा हो, या वो स्टैटिक हो, वो डायनामिक ना हो, दैट्स ओके, बट यूजर उसको किस तरह से एक्सेस कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रियलिस्टिक यूजर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर फाइनलाइज कर सकते हैं बिकॉज नाउ वी हैव कम विद सम टेंजिबल सॉल्यूशन। और एक एग्जिट क्राइटेरिया में ज्यादा टाइम तक भी प्रोटोटाइप स्टेज में नहीं रह सकते, और हमें प्रोटोटाइप स्टेज से क्या क्या बेनिफिट लेके आगे बढ़ना है हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो वो एग्जिट क्राइटेरिया भी हमारे प्रोटोटाइपिंग स्टेज के ड्यूरेशन में डिस्कस होने चाहिए। एंड देन फीडबैक समरी। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें जो भी उसका टेक आर्किटेक्चर है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसका फीडबैक मैकेनिज्म है, और जो भी एक्सपेरिमेंट है, इन सब पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा तो फिर हम आगे उस पर इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे। और सिमिलरली इसमें भी आप हमेशा नेक्स्ट स्टेज से प्रीवियस स्टेज पे जा सकते हैं जब भी आपको प्रेजेंट स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम लगे या फिर कोई भी सजेशंस मिले आपको आइडिया इंप्रूव करने के लिए या प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंप्रूव करने के लिए, then we have to go to the previous stage. This is how the product management function works. तो हम प्रॉब्लम से स्टेटमेंट से आइडिया की तरफ आते हैं, फिर हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं, उसके बाद हम अपना जो प्रोटोटाइप है वो हम डेवलप कर लेते हैं। तो प्रोटोटाइप के बाद में हमें कुछ फीडबैक मिलता है, दैट इज द इनफ्लो। ओके, हियर यू कैन सी द इनफ्लो, वेट अ मिनट, पेन, या दिस इज द इनफ्लो फ्रॉम द प्रोटोटाइप। ओके, सो प्रोटोटाइप से आपको जो फीडबैक मिलेगा और जो भी आपने उसका डेटाबेस डेवलप किया है उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको फिर आप काफी सारी चीजों से मैच करेंगे। आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं आप उनको एनालाइज करेंगे, आपके जो टारगेट्स हैं, जो इनसाइट्स हैं, जो प्रायोरिटीज हैं और जो यूजर फीडबैक है, उन सारी चीजों को आप कंबाइन करते हुए एक नया वर्जन निकालेंगे एंड दैट इज द आउटफ्लो, दैट इज न्यू रिलीज और न्यू फीचर्स लाइक विंडो 8 से विंडो 10 आना। ओके, सो वो आपका होगा, दैट इज द फर्स्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ओके, देन अगेन यूजर उसको यूज करेंगे, उसका फीडबैक देंगे, अगेन आपका पूरा ये जो प्रोसेस है इट इज इटरेशन। तो उसके बाद में जो उसका सेकंड वर्जन आएगा दैट इज द सेकंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट फर्स्ट इटरेशन। ओके, एंड देन उसके बाद में अगेन उसका कुछ फीडबैक लूप होगा। इस तरह से जो आपका प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू वे में रिफाइन होता जाएगा। सो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट फंक्शन है वो वर्क करता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो काफी क्रिटिकल है स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि 75% जो आपके स्टार्टअप्स हैं वो फेल होते हैं। एंड क्योंकि स्टार्टअप्स के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और वो ड्रिवन बाय पैशन होते हैं, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी लिमिटेड होता है। लाइक एक अच्छी बड़ी कंपनी मान लेते हैं टाटा, अब उसके पास तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी दिक्कत नहीं है, अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज है, सब कुछ है। बट अगर मैं मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लाना चाहूंगा
तो ये एक मेरा पैशन है कि हाँ मुझे वो प्रोडक्ट लेके आना है। अगर पैशन नहीं है तब क्या होगा कि एक दो बार फेल होने के बाद मैं गिव अप कर जाऊंगा, और अगर पैशन है तो मैं कंटिन्यूअसली उसमें चलता रहूंगा और फाइनली एक अच्छा वर्जन जब मेरा प्रोडक्ट का मार्केट में आएगा तो मेरा स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो स्टार्टअप्स के जो फेल होने का एक बड़ा रीजन है कि उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और लिटिल और नो स्ट्रक्चर उनके पास में होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टअप्स के लिए, इवन नॉट ओनली फॉर स्टार्टअप, बिग कंपनीज, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और प्रोडक्ट का रिस्क क्या है कि हमने कुछ ऐसा बना दिया जो कि यूजर्स को चाहिए ही नहीं, या फिर वो पुअरली बिल्ड है, भले ही उसकी डिमांड चाहे ग्रेट हो, चाहे अच्छी डिमांड हो उसकी, लेकिन जो हमने बनाया है उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं बनाया है। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट फेलियर का एक रिस्क है जिसको हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ रीजन है, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, बहुत सारे आपके जो रीजन है वो आपको स्टडी करने चाहिए फिजिबिलिटी स्टडी के दौरान। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिनकी मार्केट नीड ही नहीं थी और वो फेल हुए। 42% ऐसे प्रोडक्ट थे। कुछ प्रोडक्ट क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपके पास में पैसे की कमी होगी तो यू रन आउट ऑफ द कैश। ओके, तो आपने मतलब डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के टाइम में अगर मान लो कुछ आइडिएशन स्टेज में डाल दिया कि भाई ये मुझे सॉल्व करना है, और आपने 10 चीजें उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी, हो सकता है कि वो आपके आउट ऑफ बजट चला जाए। तो आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के अंदर फंडामेंटल प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी होगी, उसी पे फोकस करना होगा, सो दैट you do not run out of the cash as well as out of the time. Okay, and you come in the market at right time. Okay, हो सकता है कि हमारी टीम में मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो सकता है कि जो हमारा कंपटीशन है वो हमसे आगे चला जाए, हो सकता है कि हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो ज्यादा आ रही हो। हमने ऐसा कूलर तो बना दिया जो मतलब ऑटोमेटिक पानी सप्लाई स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसकी कॉस्ट 2000 रुपये ज्यादा आ रही है। जब हमने लोगों से फीडबैक लिया कि भैया आपको इस तरह का कूलर चाहिए, तो सारे बहुत खुश थे कि हाँ हम लेंगे बिल्कुल। लेकिन जब हमने बताया कि ये 2000 रुपये एक्स्ट्रा में मिल रहा है, तो फिर सबने कहा कि नहीं इट्स ओके, हम अपना स्विच अपने आप ऑन कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे, हमें इस फीचर की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ यूजर कई बार प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। ओके, उसको कैसे यूज करना है वो यूजर को समझ में नहीं आता है, या फिर उसके लिए एक लंबी ट्रेनिंग चाहिए होती है, या फिर उसको यूज करते वक्त बहुत सी अनोइंग सिचुएशंस आ रही होती है। तो आपका यूजर फ्रेंडली अगर नहीं होगा प्रोडक्ट तो उसके फेल होने के भी चांसेस रहते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने बिजनेस मॉडल उसका रेडी नहीं किया है, ओके, स्केलेबिलिटी और उन चीजों को आपने ध्यान में नहीं रखा है, आज आप 10 यूनिट बना रहे हैं, कल को 100 यूनिट्स की डिमांड होगी, आप उसको कैसे मीट करेंगे? फिर 1 लाख यूनिट्स की डिमांड होगी, उसको आप मीट कैसे करेंगे? सो आपको ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन उसकी मार्केटिंग प्रॉपर ना हो, तब भी प्रोडक्ट फेल होता है। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कस्टमर्स को इग्नोर करना, कि कस्टमर कह रहा है कि उसको ये फीचर्स अच्छे नहीं लग रहे, आप तब भी उसमें चेंज नहीं कर रहे हो और आपका कंपटीटर चेंज कर जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। नोकिया ने टाइम के साथ में अपने प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं किया तो वो आउट ऑफ द मार्केट हो गया, जबकि बहुत अच्छी उसकी रेपुटेशन थी। इसके साथ साथ जो सैमसंग, एप्पल, ये कंटिन्यूअसली कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करते गए और आज वो मार्केट में नोकिया से कहीं ज्यादा आगे है। सो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो फास्ट करनी चाहिए। ओके, सो उसके लिए हम जो यूज लेंगे वो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक। रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? टू गेट अ रियलिस्टिक फंक्शनल, सबसे पहले कि प्रोटोटाइप हमें क्यों बनाता है, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स, ओके, सो विल नॉट गो इनटू दैट। प्रोटोटाइप और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में मेजर डिफरेंस क्या है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज मिनिमम, लेकिन वो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है और ये एक रियल प्रोडक्ट है। ये सिक्योर होता है, रिलायबल होता है, बिकॉज आप यूजर को अनरिलायबल प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। इट शुड बी टेस्टेड। ओके, तो आपका जो BIS है या फिर जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फिर जो सेफ्टी टेस्टिंग के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ये हर फील्ड के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जैसे इंट्रिंसिक सेफ्टी होता है हैजार्डस एनवायरनमेंट के लिए, तो इस तरह की सिक्योरिटी टेस्ट के बाद ही आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो
आपका जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है वो सिक्योर एंड रिलायबल होता है। प्रोटोटाइप में हमें सिक्योरिटी रिलायबिलिटी कंसर्न नहीं होती है, बिकॉज जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है। हम अपने सुपरविजन में यूजर को उसको यूज करने के लिए बोलते हैं, तो यूजर हमेशा डेवलपर के साथ टच में रहता है। इसी के साथ जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, इट इज एक्सेसिबल बाय ऑल द यूजर्स, और जो रियल डाटा सर्विसेज है उसके साथ वो कनेक्टेड होता है। ओके, सपोज हम कोई भी मैसेज सर्विसिंग वाली जो ऐप है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो यूजर वो रियल टाइम में मैसेज भेजने में केपेबल होना चाहिए, या फिर जो रियल मैसेजेस है उनको ट्रांसफर करने में केपेबल होना चाहिए। लेकिन प्रोटोटाइप के अंदर हम डमी डाटा भी यूज ले सकते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि यूजर किस तरह से उसको एक्सेस करेगा और उसका क्या यूजर एक्सपीरियंस होगा। तो ये है मेजर डिफरेंस प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट में। इसी के साथ साथ जो एक बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि प्रोटोटाइप आपका मास मैन्युफैक्चरेबल हो ये जरूरी नहीं है, और मोस्टली नहीं होता है। इसी के साथ साथ जो आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो मास मैन्युफैक्चरेबल होना चाहिए। ओके, प्रोटोटाइप में कॉस्ट का इशू नहीं आता है, क्योंकि प्रोटोटाइप हम मार्केट में जो भी चीजें अवेलेबल है उनको यूज लेके बना लेते हैं। ओके, तो वो पार्ट्स महंगे हो सकते हैं, या फिर जिन पार्ट्स को हमने खरीद के मॉडिफाई किया है वो हो सकता है खुद अपने आप में एक प्रोडक्ट थे। तो इस तरह से प्रोटोटाइप की हो सकता है कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, लेकिन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको फिर फाइनली जो भी उसमें इम्प्लीमेंट करनी होती है चीजें, वो आप करने के बाद ही मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पे आ सकते हैं। हमारी जो प्रोटोटाइपिंग है उसको हम स्पीड अप कैसे करें, इसके लिए हमें फोकस को एकदम मतलब हमें उन चीजों पर फोकस करना होगा जो यूजर के थ्रू टेस्टेड होनी है। ओके, कन्वेंशनल फीचर है वो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। कन्वेंशनल फीचर जैसे कि हमने होम ऑटोमेशन का एक कोई भी डिवाइस बनाया, और वो जो मान लेते हैं कि बल्ब है जो अंधेरा होते ही अपने आप जलता है, और लाइट मतलब रोशनी होती है अपने आप बंद हो जाता है। तो उसमें जो कन्वेंशनल फीचर है कि भी वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, तो उस पर हम बाद में काम कर सकते हैं। प्रोटोटाइप में हमें उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। प्रोटोटाइप में हम उसकी फंक्शनैलिटी चेक करेंगे और यूजर का उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस है तो वो चेक करेंगे। तो इस तरह से हम जो प्रोटोटाइप है उसमें सिर्फ उन्हीं चीजों को इंक्लूड करेंगे जो हमें चेक करनी है। कन्वेंशनल चीजें हम बाद में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोटोटाइप के लिए हमारे पास में काफी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, कि जैसे कि डिजाइनिंग और फैब्रिकेटिंग के लिए हम कैड और कैम टूल्स का यूज कर सकते हैं। ये कैड और एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टूल्स आल्सो, ये चीजें क्या है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। जब भी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को यूज में लेके डिजाइन करते हैं, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइप बहुत फास्ट बना सकते हैं। जैसे कि एक कोई डिवाइस है, मुझे उसका एनक्लोजर बनाना है, वैसा एनक्लोजर मार्केट में मिल नहीं रहा है, उस केस में मैं क्या करूंगा, एक ऑटोकेड यूज लेके उसका मैं एक डिजाइन फटाफट बना लूंगा। अब ऑटोकेड में इतने सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से मेरे डिजाइन वो है फास्ट बन जाता है। उसके बाद जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टूल है, तो ये कोई भी आपकी फैब्रिकेटिंग मशीन हो सकती है जो कि आपके कैड डिजाइन है उसका यूज लेके और उस पर्टिकुलर डिजाइन को फैब्रिकेट कर सके। ओके, तो हम जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टूल, जैसे कि आपका 3D प्रिंटर है, ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टूल है। और 3D प्रिंटर क्या होता है कि जैसे आपके 2D प्रिंटिंग पेपर पे होती है, तो वो एक प्लेन के अंदर हो गया एक्स और वाई डायरेक्शन में। 3D प्रिंटिंग मतलब 3D स्पेस के अंदर प्रिंटिंग, मतलब जेड डायरेक्शन में भी, मतलब कि जैसे हमारे सामने एक पानी की बोतल रखी हुई है, हम वैसी की वैसी बोतल को प्रिंट कर सके, दैट इज 3D प्रिंटिंग। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में ये कैसे होएगी कि पहले एक लेयर 2D लेयर, एक जो सर्कल है वो जमीन पे जाएगा, ओके, उसके ऊपर दूसरा लेयर आएगा, उसके ऊपर तीसरा लेयर आएगा, उसके ऊपर चौथा लेयर आएगा। तो लाइकवाइज लेयर बाय लेयर जब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज कॉल्ड द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारे प्रोटोटाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने में काम आती है। ओके, और उसके अलावा कुछ चीजों को हम खाली सिमुलेट करके उनका बिहेवियर चेक कर सकते हैं, कि हमें पता है कि हम सर्टेन मटेरियल की चेयर बनाने वाले हैं, तो हम जो भी उसका डाटा है वो फीड करके सॉफ्टवेयर में और डिफरेंट टेस्ट कंडीशंस डाल सकते हैं। ओके, और उन टेस्ट कंडीशंस में उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो सस्टेन कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो चेयर की आर्म बना रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर मटेरियल की बना रहे हैं, अब हम उस पे टेस्ट कंडीशन डालते हैं कि यूजर जब उस पे हाथ रख के उठेगा
तब यूजर का पूरा बॉडी वेट उस आर्म पे आएगा। तो उतना जो फोर्स है वो हम सॉफ्टवेयर के अंदर सिमुलेट करके देखेंगे। ओके, तो उसके बाद में हमें पता चलेगा कि वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो हम आगे उसको फैब्रिकेट करेंगे, नहीं कर रहा है तो हम डिजाइन में चेंज करेंगे। तो इस तरह से हम सिमुलेशन टूल्स को यूज करके भी प्रोटोटाइपिंग को फास्ट कर सकते हैं। समटाइम्स हो सकता है कि जब हम प्रोटोटाइप बना रहे हो और कहीं पर हम अटक जाते हैं तो हमारे पास में यूजर का एक्सेस ना हो सकता है यूजर हमें एक हफ्ते बाद मिले। ओके, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, खुद यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के, और हमें तो हमें यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के और कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, और उन एजम्पशंस के हिसाब से एक बार सॉल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन साथ के साथ हमें श्योर करना पड़ेगा कि हमने जो चीजें एज्यूम करी है, जो चीजें हमने यूजर से डिस्कस नहीं करी है, वो हम यूजर के साथ डिस्कस करके और इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे आपने प्रोटोटाइप पूरा बना लिया और उसमें से 10 में से 3 चीजें आपने एज्यूम कर ली, क्या ठीक है ये बटन दबाने से ये चीज हो जाएगी, ठीक है इट्स ओके। अब होता क्या है कि आपने यूजर के साथ डिस्कस नहीं किया और आगे पूरा आपने जो प्रोसेस है उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तक का कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में जब वो यूजर के पास में गया तो यूजर फिर बताता है कि ये चीज इसमें गलत है या फिर इस प्रोडक्ट में ये खामी है। ओके, तब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि हम दोबारा से सारा प्रोसेस है वो पूरा करें, हमारी काफी कॉस्ट और हमारा जो टाइम है वो उसमें इन्वेस्ट हो चुका होता है। ओके, तो हम जब भी कोई भी एजम्पशंस लें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हमें वैलिडेट करना बहुत जरूरी है यूजर के साथ में। इसी की तरह हमें जो प्रोटोटाइप है उसमें सिंपल पॉइंट टू पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना जरूरी है, सो दैट हम उन चीजों को शेयर कर सके हमारी टीम के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। मैं हार्डवेयर डेवलपर हूँ और अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन मेरे हार्डवेयर का बनाता हूँ तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को समझने में आसानी होगी। सिमिलरली जो मेरा जो प्रोडक्ट मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको समझने में आसानी होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत जरूरी है, एज वेल एज जब हम नॉलेज ट्रांसफर करते हैं या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो उस केस में भी क्या होता है कि अगर उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो जो आगे उसको जो भी अडेप्ट कर रहा है वो उस पर फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। ओके, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास में आना पड़ेगा। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरह से करना चाहिए कि उसके बाद में इवन हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, तो हमारा वो डॉक्यूमेंटेशन वो सिंपल होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। क्वालिटी जो है वो हमारी राइट कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। तो एक क्वालिटी कार जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो किसी के लिए क्वालिटी हो सकता है कि वो मतलब टॉप स्पीड ज्यादा है, किसी के लिए क्वालिटी हो सकता है कि कॉर्नर्स पे वो बहुत स्टेबल रहती है, और किसी के लिए क्वालिटी ये हो सकता है कि वो अच्छा एवरेज देती है और उसकी कॉस्ट कम है। ओके, तो हमें जो क्वालिटी है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत रहती है हमेशा। हो सकता है कि कई बार जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है वो पूरा का पूरा ही स्टार्टिंग से स्क्रैच दोबारा बनाना पड़े। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतना काम कर लिया अब हम इसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, हम दोबारा से सारा प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया गलत था या आपका जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो कोई बुराई नहीं है दोबारा से स्टार्ट करने में, क्योंकि जब दोबारा से आप स्टार्ट करके उसको पूरा बनाएंगे अब वो यूजेबल होगा और तभी वो मार्केट में सक्सेसफुल होगा। तो हमें हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमने जितना भी काम किया या जितना भी हमने उसका प्रोग्रामिंग कोड वगैरह जो भी बनाया, हो सकता है वो यूजलेस हो जाए। इस सिचुएशन के लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ओके, और यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी हम प्रोटोटाइप बनाएंगे तो हम हमेशा जो उसको यूज करने वाला है, जो उसका एंड यूजर है, हमेशा हम उसको वो प्रोटोटाइप प्रोवाइड करवा के बताएंगे कि अब आप बताइए कि आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं, या फिर इसमें कौन से फीचर होने चाहिए या कौन से नहीं होने चाहिए। तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, जो कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजाइन थिंकिंग है, दैट इज एम्पैथाइज, वो बहुत जरूरी है। ओके, अब हम केस स्टडी लेते हैं कि किस तरह से हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। ओके, किस तरह से हम डिजाइन थिंकिंग का यूज लेके अच्छे और वायबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं।
तो ये एक आपके सामने एग्जांपल है, ये वाटर लेवल कंट्रोल का एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हैं एक बड़ा टैंक है, ओके, और बड़े टैंक में जैसे पानी का जो लेवल है वो ये जो हाइट है इसकी, ये इसका लेवल शो कर रही है। इसके साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब आपको साइड में दिखाई दे रही है जो कि इंडिकेट कर रही है कि कितनी हाइट पे पानी है। अब पहले जब टेक्नोलॉजी जो फिजिबिलिटी जो बताता है, टेक्नोलॉजी पार्ट हमारा, टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप्ड नहीं थी उस वक्त। क्या थी फिजिबिलिटी कि हम एक मैकेनिकल वॉल लगा पाए, ओके, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक पर्सन को अपॉइंट करें, ओके। तो वो क्या करेगा, एक सर्टेन लेवल पे इस पानी को मेंटेन रखेगा। किसी भी पर्पज से ये इस लेवल पे मेंटेन रखना एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या था, वॉल, एंड अ पर्सन हु कंट्रोल्स द वॉल, ओके। सो इसमें दिक्कतें क्या आ रही है, इसमें दिक्कतें आ रही है कि एक आदमी को कंटिन्यूस वहां पे रहना पड़ेगा। ह्यूमन एरर्स जो पॉसिबल है वो हो सकते हैं हमेशा, उसको हाइट गलत दिखाई दे, या फिर हो सकता है कि वो कहीं और बिजी हो जाए एक बार और पानी का लेवल ऊपर चला जाए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इस मॉडल में हमें दिखाई दे रही है। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, हम एक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि हमारी टंकी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ्स पे कुछ प्रॉब्स होंगी, और जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा वो प्रॉब शॉर्ट होती जाएंगी, और अकॉर्डिंगली हमें पता चलता जाएगा कि पानी का लेवल कहाँ पर है। लेट्स से हमारे पास में 5 पॉइंट है, तो हम 5 पॉइंट्स पर उन लेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें 1 पॉइंट तक का पानी चाहिए, 2 पॉइंट तक का पानी रखना है, लाइक दैट। एज वेल एज मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि पानी कितना है टंकी में। सो डेफिनेटली आप इससे कंपेयर करें तो ये काफी इनोवेटिव चीज है, और जैसे आज की डेट में टेक्नोलॉजिकली फिजिबल भी है और साथ के साथ रिलायबल भी है कि हमें इसमें किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, या फिर जो हमारा वाटर लेवल कंट्रोल है वो अपने आप ही हो जाएगा, हमें देखने की उसमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसको भी हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, फॉर एग्जांपल आपका जो वाटर टैंक है वो 5 फ्लोर की बिल्डिंग में जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर की छत पे है, ओके, और जो आपकी मोटर है वो आपकी जो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो आपका इतना लंबा चौड़ा इसमें वायरिंग लगेगा, ठीक है। वायरिंग के साथ भी 10 दिक्कतें आती है कि बीच में मान लो कोई चूहे उन्होंने वायर को उतर दिया, या फिर रस्ट आ गए, जो प्रॉब्स हैं जो मेजर कर रही है वाटर लेवल को, ओके। तो इस तरह की दिक्कतें फिर इसमें भी आने लगती है। तो हमें फर्दर उन चीजों को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यूजर से फीडबैक लेंगे, वो बताएगा कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है। हम अगेन एम्पैथाइज स्टेज में आए, फिर हम आइडिएट स्टेज में आएंगे कि हम किस तरह से उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकली क्या फिजिबल है, तो हम देखेंगे कि हम वायरलेस चीजें इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम एम्बेडेड सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं, ओके, और साथ के साथ हम एक इसकी मोबाइल फोन की ऐप भी बना सकते हैं। सो दिस विल बी द इनोवेटिव प्रोडक्ट फॉर वाटर लेवल कंट्रोल। अब ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी सिंपल एम्बेडेड सिस्टम, ओके। इसमें आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये आपके टंकी के हेड पर यहाँ माउंट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर जितना भी पानी है, मान लेते हैं कि इस लेवल तक पानी है, तो ये वेव ट्रांसमिट करेगा, देन वेव रिफ्लेक्ट होकर इसके पास में आएगी। तो जितना टाइम उसको जाके आने में लगा वो आपके जो डिस्टेंस है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, उससे आप वाटर लेवल डिटेक्ट कर पाएंगे। अब पहला रेस्ट्रिक्शन तो इसमें खत्म हो गया कि आप पहले 5 सर्टेन पॉइंट्स पर ही वाटर को कंट्रोल कर पा रहे थे, अब आप किसी भी लेवल पे वाटर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें जो दूसरी चीज देख रहे हैं, ये आपका प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर है, ओके। ये इस सेंसर से डेटा लेगा और उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके उसको ट्रांसमिट करेगा वाईफाई मॉड्यूल के थ्रू, ओके। आपका एक छोटा सा आईओटी सिस्टम है। IoT is nothing but Internet of Things, and those things are sensor nodes, mobile phones, या फिर जो मोटर है वो भी एक थिंग की तरह हम उसमें यूज ले सकते हैं। तो आपकी जो तीनों चीजें होगी वो कुछ ऐसे होगी। ये आपका जो ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है IoT का, ये आपका सेंसर नोड है। सेंसर नोड मतलब जो लेवल को मेजर करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। दूसरा जो नोड है वो आपका कौन सा है, मोटर जो है वहाँ मोटर के पास भी इस तरह का एक वायरलेस मॉड्यूल लगा हुआ होगा जो इस इंफॉर्मेशन को वायरलेसली रिसीव करेगा, और ये जो सेंसर नोड है ये बताएगा कि मतलब मोटर को चालू होना है कि नहीं, तो वायरलेसली कनेक्टेड है। तीसरा, हम फोन पे भी इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये वाईफाई मॉड्यूल है ESP8266, तो ये क्या एक वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट हो सकता है। तो जो भी सेंसर से डेटा आएगा वो हमारे मोबाइल फोन पे एक्सेस हो रहा है, हमने उसके लिए ऐप बनाया है
और अब हमारा ये जो IoT इकोसिस्टम है, इसके थ्रू हम अपने रूम में बैठे बैठे देख सकते हैं कि टंकी में पानी का लेवल कितना है, एज वेल एज हमें कितना लेवल मेंटेन करना है, एज वेल एज हमें मोटर बंद करनी है, चालू करनी है मैनुअली, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है। तो अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये काफी सक्सेसफुल होगा। ओके, और इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट भी कम आएगी, एज वेल एज यूजर के लिए काफी इजी भी होगा, और जो हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व कर ही रहा है, साथ में हमें जो एडिशनल फीचर दे रहा है, तो हमें कंटिन्यूअसली यूजर से फीडबैक लेके हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करते रहना चाहिए। ओके, इसी के साथ जो दूसरा केस स्टडी लेते हैं, अगेन जो हमने पिछले केस में देखा कि हम माइक्रो कंट्रोलर वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर से जोड़कर हम चीज़ों का सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे कि आपकी जो पिछली प्रेजेंटेशन थी उसमें आपने डिस्कस किया कि जो फिंगर्स के ऊपर जो सेंसर्स हैं उनमें फिलहाल जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो वायर्ड फॉर्म में हो रहा है, उनको आप वायरलेस कर सकते हैं। तो इस तरह का एक छोटा मॉड्यूल बन सकता है उस केस में। ओके, और आपका जो भी फिंगर्स पे जो भी आपका वो आ रहा है डाटा, उसको आप माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेस करके और वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो इस तरह से आप एक छोटा मॉड्यूल बना के और उसको वेरिएबल बना के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि एक छोटी सी टॉय कार है, या फिर इसकी जगह ड्रोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हमें रिमोटली कंट्रोल करना है। तो हमें क्या करना होगा कि एक ट्रांसमीटर साइड हमें बनाना होगा जिसके अंदर कुछ यूजर के थ्रू कुछ कंट्रोल पैरामीटर्स जो है वो देंगे, जैसे कि हमें उसको लेफ्ट में मोड़ना है, राइट में मोड़ना है, या फिर उसको फॉरवर्ड मोशन देना है, या फिर उसको बैकवर्ड मोशन देना है। तो ये जो जॉयस्टिक्स है इसको यूजर मूव करके वो डेटा जनरेट कर सकता है। वो डेटा वायरलेसली इस मॉड्यूल के थ्रू ट्रांसमिट कर देगा। ओके, ये जो दूसरा मॉड्यूल है ये आपका इनसाइड दैट व्हीकल होगा, और ये क्या करेगा, वायरलेसली यूजर का जो कमांड था उसको रिसीव करेगा और माइक्रो कंट्रोलर को देगा, और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ड्राइवर सर्किटरी को अकॉर्डिंगली ड्राइव करेगा, और जो आपकी गाड़ी है वो फ्रंट मूव होगी या बैक मूव होगी। ओके, अब इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या आ रहा है, इसमें ये रेस्ट्रिक्शन आ रहा है कि आपको हमेशा एक कंट्रोलर रखना पड़ेगा साइड में। ओके, और सपोज एक व्हीकल है और उसको एक्सेस करने वाले 5 लोग हैं, तो हमेशा कंट्रोलर किसके पास है ये हमें पता करते रहना पड़ेगा। ये तो मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया है। बड़ा एग्जांपल जैसे कि अंडरग्राउंड माइंस के अंदर आपका जो मैकेनाइज्ड माइनिंग होती है, उसमें जो आपका कंटिन्यूअस माइनर जो मशीन होता है वो रिमोट ऑपरेटेड कार की तरह होता है, वो करोड़ों की मशीनरी है। तो उसमें उसका जो रिमोट होता है वो हमेशा मतलब यूजर्स को ऐसे ध्यान में रखना पड़ता है कि अभी कौन से इंजीनियर्स के पास था और मुझे किससे लेना है, मेरी ड्यूटी है। तो पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है वो रिमोट किसके पास में है। इस चीज को हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम रिमोट हटा के इस चीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हम मोबाइल ऐप बना के और रिमोट कंट्रोल जो भी हमारा व्हीकल या जो भी ऑपरेशन है उसको हम अपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब मोबाइल सबके पास में है, और मोबाइल में आप उसकी ऐप इंस्टॉल करिए तो हमारे जो रिमोट की जो कॉस्ट है वो भी सेव हो रही है, एज वेल एज हमें एडिशनल रिमोट हर यूजर को प्रोवाइड नहीं करवाना पड़ रहा है। ओके, सो इस तरह से हम जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज है उनको लेके जो हमारे जो प्रोडक्ट है उनका इम्प्रोवाइज वर्जन रेडी कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने एक बार एक ऐप बना लिया, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन डाल के दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी वही जो ऐप है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले टीवी रिमोट है वो हर चीज का रिमोट अलग होता था, एसी का अलग, टीवी का अलग, बट अब मोबाइल फोन के अंदर ही इंफ्रारेड सेंसर डाल दिया गया है, IR ब्लास्टर के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम जस्ट एसी का मॉडल नंबर हमें डालना है और हम उस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम डीटीएच सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और थ्रू इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड रिसर्च हम जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है उसके अच्छे रिलीजेस जो है मार्केट में ला सकते हैं। सो डिजाइन थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू डेवलप यूजेबल प्रोडक्ट and successful products. Okay, thank you. So are there any queries?
Hello, am I audible? Yes, yes, you are definitely audible. So, Yes, if, Pushpendra. yes, students, if you have any query, you can ask Mr. Pushpender. And it will be very helpful for you in your beginning phase of research. So, I request all the participants to ask any kind of query. You can even contact Mr. Pushpender even by mail also or by WhatsApp also. He is always available and ready to solve your queries and all. So it was very nice session regarding this design thinking and what actually design is. So you made a great effort in explaining this concept to all the students. So आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि बेसिक्स क्या हैं, किस तरह से कोई प्रोडक्ट के बारे में पहले सोचा जाता है, फिर उसको कंज्यूमर फ्रेंडली कर किस तरह से लॉन्च किया जाता है, क्या उसकी बारीकियां हैं और कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की तरह रहे। जैसे कंज्यूमर कई तरह के हैं, उनकी चॉइसेस भी अलग अलग तरह की होती है, तो इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बताया, कई बार कॉस्ट मैटर करती है, कई बार सुविधा मैटर करती है, कई बार जरूरत मैटर करती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको एक नटशेल में मिलाकर एक ऐसा नायाब प्रोडक्ट देना पड़ता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट देना पड़ता है जो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की तरह लॉन्च हो मार्केट में। नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है यदि आप इसकी डिजाइन थिंकिंग एनालिसिस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में पुष्पेंद्र ने बताया। एंड मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया होगा। नाउ आई हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर राहुल राज चौधरी सर। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. So, it was really a nice session. प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जो काम किया जाना है उसके लिए जैसा कि प्रवीण पुरोहित सर ने बड़े नब्बे तुले शब्दों में बताया कि क्या क्या चीजें चाहिए, किस किस तरह से उसके डेवलपमेंट की फेजेस हैं। तो ये सभी चीजें बेहद जरूरी हैं और हमें प्रोडक्ट को एक रियल यूजफुल जो है प्रोडक्ट की शेप देके और उसके साथ में उसका एक बिजनेस मॉडल जो है प्रोडक्ट का, जो किस तरह से आप उसको मार्केट में पेनिट्रेट करें और किस तरीके से वो लोगों के यूज में आ सके, ये सारी चीजें ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और इसके लिए आपको हो सकता है कि आपको अपने लिमिट्स थोड़ी सी बढ़ानी पड़े। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, you are audible. आ रही। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपनी लिमिट्स को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, हमारी जो काबिलियत है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ता है। और हमें हो सकता है कि हम जो एक ट्रेडिशनल हमारी जो इंजीनियरिंग है उससे भी हमें थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना पड़े। और इंजीनियरिंग के जो एक आपकी ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ साथ आपको इंटर डिपार्टमेंटल जो कोलैबोरेशंस करके और एक अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में लाने की जरूरत होती है। और काफी थोड़ा सा लंबा सेशन रहा ये हमारा 3 घंटे का, और मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, डाटा वगैरह काफी कंज्यूम हो जाता है। बट उसके बावजूद जो स्टूडेंट्स ने एक अच्छे कंसिस्टेंट वे में जो है पूरे इस सेशन का जो फायदा उठाया है, उसके लिए सारे स्टूडेंट्स को आई रियली
thank to all the students, all the participants, and जो जिस तरीके से प्रवीण पुरोहित सर ने इस पूरे सेशन को मैनेज किया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा रहता है, दो अलग अलग एक्सपर्ट्स को एक साथ बुलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो काफी रेगुलर जो कंसिस्टेंट जो इन्होंने लग के इसको मैनेज किया, दैट्स रियली ग्रेट, एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू द experts, Dr. Joshi and Mr. Pushpendra Rajpurohit. Pushpendra is always available for this institution, so that's great asset for us. So thank you, Pushpendra. Thank you, respected sir. And now I hand over to Purohit sir to finally conclude and end this meeting. Thank you, sir. Thank you very much. And I hope all the students and even the faculty who have joined this program might have taken a lot of benefit of such impact lecture. And we are really thankful to AICT who has sanctioned this program. And there are only few colleges in Rajasthan who had been sanctioned these impact lectures, grant has been given to them. And we are really thankful to the chairman, vice chairman AICT. And special thanks to Dr. Rahul Raj Chaudhary sir, the President Innovative Cell Council of Engineering College Bikaner, who has taken every hard efforts, every you can say every steps that are necessary for the benefit of the student. He is always doing. Even you can look at this time also. He is available in the college, working for students for the benefit of the students. And I think this is what a real teacher, the real sense. He is actually working for the students. He is always available, and I'm also thankful to the invited speakers who have spared their time and contributed to this impact lecture series. Thanks to the audience also who very patiently have learned this from this lecture. Thank you, Pushpendra. And with this, I think we should conclude and put an end to this session. Thank you all of you.